Okay, so a very welcome to all of the students. Now, today we are going to move on to nth order derivative. We have seen higher order derivative, second order तक के examples हमने last time complete कर लिए थे. Now, read on next heading, nth order derivative. Find nth order derivative of the following. ऐसा heading लिखो आप. Find the nth order derivative of the following. Under this unit 13. क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 10 का फर्स्ट एग्जांपल आप लिखो डाउन a raised to px plus q. We have to find out nth order derivative of this. So please make a note of this. If this question is asked, it will be asked for 2 marks. Okay, now listen to the working rule very carefully. Whenever nth order derivative का question comes, वर्किंग रूल मैं आपको ओरली समझा देता हूँ. फाइंड आउट dy by dx, d2y by dx2 एंड d3y by dx3. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और फिर उसके बेसिस पे वी हैव टू जनरलाइज एंड राइट डाउन द nth ऑर्डर डेरिवेटिव. उसके जो कोएफिशिएंट्स में चेंजेस है, उसके पावर में जो चेंजेस है, उसके टर्म्स में जो चेंजेस है, वी हैव टू ऑब्जर्व द चेंजेस इन ऑल द डेरिवेटिव वी हैव फाउंड आउट. फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर में हमने जो भी डेरिवेटिव फाइंड किया है उसमें चेंजेस वो देख के फिर हम जनरलाइजेशन करेंगे एंड वी विल राइट डाउन द nth order derivative. So let us quickly understand the working rule by solving some examples. Write down first one, a raised to px plus q का nth order derivative find करना है. चलो let's start quickly with the solution. तो सबसे पहले तो आपको पता है step let y is equal to a raised to px plus q. Okay, first example है, so I will go step wise. ठीक है, write down differentiating with respect to x. So therefore dy by dx is nothing but equal to इसका derivative with respect to x. Now we are going to apply the formula of a raised to fx. तो रिकलेक्ट डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है? a raised to fx का डेरिवेटिव होता है a raised to fx into log a into f dash of x. the very basic concept कंपोजिट फंक्शन का. तो a raised to px plus q का डेरिवेटिव क्या होगा? तो इट विल बी a raised to px plus q into log a into डेरिवेटिव ऑफ px plus q, and px plus q का डेरिवेटिव होगा नथिंग बट p. So this is our dy by dx and this is our first order derivative. हमें third order derivative तक find करना है. Okay, so we'll again differentiate with respect to x. इसके बाद देखो वापस differentiating again with respect to x. तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम. So we'll take d by dx on both the sides of equality. So therefore देखो d by dx of dy by dx is nothing but equal to right hand side में p log a constant है, p log a constant है, so we will be getting d by dx of a raised to px plus q. इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें. Now as per the notation we all know that d by dx of dy by dx is nothing but d2y by dx2. This is equal to p log a remaining same a raised to px plus q का डेरिवेटिव हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं ऊपर. चलो तो राइट डाउन. तो इसका डेरिवेटिव विल बी a raised to px plus q into log a into डेरिवेटिव ऑफ px plus q which is nothing but p. अब ये टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो therefore what is the second order derivative? तो d2y by dx2 is nothing but equal to p into p. तो ये हो गया p square log a into log a. तो ये हो गया log a the whole square. ठीक है, into a raised to px plus q remains the same. तो ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है,
बट हमें कहाँ तक जाना है, वी हैव टू फाइंड आउट टिल थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिर nth ऑर्डर हम जनरलाइजेशन करेंगे। तो इसका वापस डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग, इसके बाद लिखो डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So when we differentiate with respect to x, so therefore what will happen, d by dx of d2y by dx2 is equal to p square into log of a the whole square into, ये तो कांस्टेंट है, तो d by dx किसका लेना है, a raised to px plus q का डेरिवेटिव is to be taken. So this will be further equal to, now d by dx of d2y by dx2 is nothing but d3y by dx3, this is equal to p square into log a the whole square into इसका डेरिवेटिव हम पहले भी 2 बार ले चुके हैं, वापस ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। So therefore the third order derivative with respect to x is nothing but p cube into log a the whole cube into a raised to px plus q. So working rule says find out the derivative till the third order, और उसके बाद ऑब्जर्व करके उसका जनरलाइजेशन करना है। So continuing in such a way, what will be the nth order derivative with respect to x? nth order derivative हमें लिखना है। अभी ऑब्जर्व करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में log a का पावर 1 है, log a का पावर 1 है, p का पावर 1 है, a रेज टू px प्लस q है। अभी आप देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में p का पावर 2 हो गया, log a का पावर 2 हो गया, a रेज टू px प्लस q एज इट इज। फर्स्ट एग्जांपल है तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको दे रहा हूँ। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप देखो p का पावर 3 हो गया, log a का पावर 3 हो गया, a रेज टू px प्लस q। तो जनरलाइजेशन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में p का पावर विल बी n, log a का पावर will be also n into a raised to px plus q will remain same, and this is our final answer and the nth order derivative। मतलब अगर आप n का वैल्यू 2 डालोगे यहाँ पर तो आपको ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, आप n का वैल्यू 1 डालोगे तो आपको ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, आप n का वैल्यू 3 डालोगे तो आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। इसीलिए वी जनरलाइज and write down the nth order derivative by observing the previous derivative. Okay, चलो please make a note of this. Example number 1 is over. लिख लीजिए आप नोटबुक में इसको। So please write down the second example, 1 upon ax plus b। ये मैंने जनरल फॉर्म में लिया है ना, 1 upon ax plus b। चलिए solution for this example. So how do we start? So we always start let y is equal to 1 upon ax plus b। तो हमें क्या करना है, we have to go till the third order derivative और फिर उसको जनरलाइज करके nth order derivative लिखना है। तो चलो let us begin the process. Write down differentiating with respect to x। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x is nothing but dy by dx। Now which formula do we apply? So we are going to apply the formula of 1 by fx। तो 1 by fx का क्या फॉर्मूला है, माइनस 1 by fx the whole square into f dash of x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इट विल बी माइनस 1 by ax plus b the whole square into डेरिवेटिव ऑफ ax plus b, and ax plus b का डेरिवेटिव विल बी नथिंग बट a। ठीक है, चलो राइट डाउन दिस वन, ऐसा लिख लो आप इसको। तो इसको हम रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, या चलो एज इट इज रखते हैं इसको, माइनस 1 अपॉन ax plus b the whole square into a। so this is the first order derivative। now we are going to differentiate this again with respect to x। तो लिखो इसके बाद differentiating
with respect to x, so therefore इसका डेरिवेटिव, तो d by dx of dy by dx. okay, now you can observe यहाँ पे माइनस a कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखो, इसमें कुछ चेंजेस मत करो. नाउ माइनस a कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा d by dx. ठीक है, या आप ऐसा करो, माइनस a मत लिखो उसको आप -1 इंटू माइनस ए ही लिखो. इसको, ये जो पार्ट है ना, इसको यू राइट डाउन इट एज -1 इंटू ए, ऐसा लिखो. आई टेल यू व्हाई. इंटू d by dx of what? 1 upon ax plus b the whole square, so that can be written as ax plus b whole to the power -2. वैसे आप डायरेक्टली 1 by fx का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, बट let us go with this. So ax plus b to the power -2 आ गया. So now therefore d by dx of dy by dx is nothing but d2y by dx2 -1 into a remaining same. ठीक है, अभी इसका डेरिवेटिव लेना है, तो fx raised to n. तो fx raised to n का क्या फॉर्मूला है? इट इज n इंटू fx raised to n -1 इंटू f dash of x. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा इस टर्म का? तो इट विल बी -2 इंटू ax plus b to the power -3 into derivative of ax plus b, which is nothing but a, and the bracket closes. n into fx raised to n -1 into f dash of x. ठीक है ना, we have done composite function का working earlier also. अब इसको थोड़ा जरा हम रीअरेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो read on, therefore d2y by dx2 is equal to -1 into -2, ऐसा लिखो, -1 into -2, a into a is nothing but a square. ठीक है, -1 -2 a into a square, और ये पावर नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट अपॉन में आएगा ax plus b the whole cube. ठीक है, राइट डाउन दिस वे. अभी इसको भी हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं फॉर योर रेफरेंस. आई ऑल्सो रीअरेंज दिस. चलो ठीक है, बाद में रीअरेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बाद में. You just leave a space over here. I will rearrange this a bit later on. I'll tell you why. तो ये हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. Now please do not write down -1 into -2 को मल्टीप्लाई करके आप 2 नहीं लिखोगे. When we are doing the generalization, generally we don't multiply and simplify them. जैसा डेरिवेटिव मिला है वैसा ही उसको लिखना होता है. Now we'll find out the derivative of this. अभी थोड़ा आप यहाँ पे स्पेस छोड़ दो, थोड़े कुछ चेंजेस है वो हम जरा बाद में करेंगे. Why that I'll tell you later on. ठीक है, अभी लिखो नेक्स्ट. Now we will differentiate this again with respect to x. तो चाहिए तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, write down, differentiating with respect to x again. तो इसका डेरिवेटिव लेना है, तो वही सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे. तो therefore d by dx of d2y by dx2, ठीक है, इज इक्वल टू -1 इंटू -2 इंटू a स्क्वायर. ये सब कांस्टेंट है. तो d by dx, तो d by dx of what? तो ax plus b to the power -3. ठीक है, वैसे इसको भी हम लिख सकते हैं, पर ये रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड है. तो विल टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस स्टेप. ये पावर मैंने -3 लिख दिया वापस इसको. ठीक है, so this will be further equal to, right on next step, this is -1 into -2 into a square, और इसका डेरिवेटिव will be -3 into ax plus b to the power -4 into ax plus b का डेरिवेटिव is a. Close the bracket. अब इसको वापस रीअरेंज कर लेते हैं हम. So this will be rearranged and will be written as -1 into -2 into -3. a square into a is nothing but a cube, और ये पावर नीचे चला जाएगा. तो दिस इज ax plus b
to the power 4 and this is nothing but our third order derivative. ये है हमारा d3y by dx3 है, ठीक है ना। चलो लिख लो, फिर हम जनरलाइजेशन करेंगे इसके बाद। अच्छा, नाउ लेट अस ऑब्जर्व। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में इट इज ओनली -1 into a। तो जनरलाइजेशन करके आई टेल यू हाउ टू ब्रेक डाउन। हैव अ लुक, -1 into a अपॉन ax प्लस b का पावर है 2। फिर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो। नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज -1 into -2 into a स्क्वायर into ax प्लस b द होल क्यूब है। अब देखो यहाँ पे a का पावर 1 था, है ना, यहाँ पे a का पावर 1 था, अभी यहाँ पे a का पावर 2 हो गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में a का पावर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ax प्लस b का पावर 2 था, यहाँ पे ax प्लस b का पावर 3 हो गया। तो जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो नीचे वाले ऊपर a का पावर 1 है, इसका पावर 2 है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में दिस इज हाउ वी हैव टू ऑब्जर्व। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में a का पावर 2 है, बट नीचे जो टर्म है उसका पावर 3 है, ठीक है ना। नाउ एट द सेम टाइम ये प्लस माइनस और कांस्टेंट भी हम रीअरेंज करेंगे। राइट डाउन, दिस विल बी फर्दर रिटर्न एज, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो दिस विल बी रिटर्न एज -1 into -1। ये देखो दो बार -1 है, -1 दो बार है, तो इट इज -1 द होल स्क्वायर into 1 into 2, ऐसे लिखो आप। सिंस माइनस साइन इज 2 टाइम्स, तो कैसा है वो, -1 into -1, तो इट इज -1 द होल स्क्वायर 1 into 2 into a square upon ax plus b the whole cube will remain same. I'll tell you why we are doing so. तो जो d2y by dx2 है, मैंने आपको पहले भी बोला था स्पेस छोड़ देना, तो ये आप लिख लो d2y by dx2। अभी हम d3y by dx3 पे आते हैं। अब देखो -1 3 बार है, -1 3 बार है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देयरफॉर d3y by dx3 -1 3 बार है, तो -1 का क्यूब हो जाएगा। नाउ नंबर्स 1 into 2 into 3, तो दूसरे ब्रैकेट में लिखो 1 into 2 into 3 into a cube remaining same upon in the denominator it is ax plus b to the power 4। इसको हमने ऐसा रीअरेंज कर लिया। Students, we have to generalize. So therefore, continuing in such a way, the nth order derivative, अभी आप देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ये जो -1 है, -1 का पावर 1 है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 का पावर 2 है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 का पावर 3 है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 का पावर n होगा, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, ठीक है, -1 raised to 1, तो मल्टीप्लीकेशन में 1 है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 1 into 2। नेक्स्ट है 1 into 2 into 3, तो 1 into 2 into 3, और तो नेक्स्ट में क्या होगा, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 एंड सो ऑन होते जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट इट विल बी रिटर्न एज n फैक्टोरियल। दिस विल बी रिटर्न एज नथिंग बट n फैक्टोरियल, ऐसा n-1 तक चलेगा। So this whole thing will be generalized and will be written as n factorial into, ठीक है। Now see observe over here, a का पावर 1 है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, a का पावर 1 है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में a का पावर 2 है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में a का पावर 3 है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में a का पावर n हो जाएगा अपॉन, नाउ सी ax प्लस b का पावर dy by dx में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पावर 2 है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर का पावर 3 है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर का पावर 4 है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर का पावर क्या हो जाएगा, n+1 ना, एक ग्रेटर पावर है। 1 में 2 है, 2 में 3 है, 3 में पावर 4 है, तो n में n+1 हो जाएगा। So this is nothing but our final answer and the nth order derivative of this y given. इसका nth order derivative ये है, ठीक है। अभी आप n का वैल्यू 1 डालोगे, if you put n is equal to 1 you will get this,
if you put n is equal to 2, you will get this. देख लो आप, -1 raised to 2. 2 factorial is 1 into 2 या 2 into 1. We have done factorial notation, we are familiar. a का पावर 2 हो गया, ठीक है. यहाँ पे n का वैल्यू 2 डालोगे तो ax plus b का पावर 3 हो जाएगा. So we have to generalize in this manner. Okay. चलो, please make a note of this. Second example is also over. तो आई होप यू मस्ट हैव रिटन. अब अच्छा, ये प्रॉब्लम मैंने जनरलाइजेशन में लिया है, तो आपको जरूर नहीं एग्जाम में 1/ax plus b ही पूछेंगे. इन एग्जाम दे कैन आस्क यू डिफरेंशिएट दिस 1/2x plus 3 का डेरिवेटिव पूछ लेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और दे माइट आस्क यू 1/4x minus 5 का डेरिवेटिव पूछ लेंगे. प्रोसीजर यही रहने वाला है. जो 1/ax plus b का फॉलो किया है, दैट सेम प्रोसीजर will be followed when you are doing either of these examples. Generalization में मैंने क्यों लिया है, ताकि आपको उसमें थोड़ा समझने में आसानी हो. So this will become more simple. अगर numbers के साथ आया, तो numbers के साथ तो you can clearly observe कि उसका power increase हो रहा है, क्या हो रहा है, you know. चलो, please make a note of this. ऐसे भी question आप ये लिख लो and you can solve them. One of this as homework section. इसमें से कोई एक, चलो मैं एक ये particularly ये दे देता हूँ. ये plus वाला किया ना, तो इसको आप होमवर्क के लिए करो. 1/4x minus 5 का you will find out the nth order derivative. इसका डेरिवेटिव आप फाइंड करोगे फॉर होमवर्क. 1/4x minus 5 का nth order. सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, ठीक है. चलो, नोट. देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल हो गया, एक एल्जेब्राइक हो गया. नाउ लेट अस टेक वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. वापस जनरल फॉर्म में ले रहा हूं मैं, cos ax plus b. ठीक है, चलो रिडन. 2 to 3 मार्क्स, 2 और मे बी 3. ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, nth ऑर्डर डेरिवेटिव में. चलो, सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. लेट दिस बी इक्वल टू y. y is equal to cos ax plus b. So obviously we will find out till the third order derivative और फिर इसको generalize करके nth order derivative लिखेंगे. Okay, so we're done differentiating with respect to x. So therefore dy by dx is further equal to, okay, cos fx का derivative. So what is cos fx का derivative? Minus sin fx into f dash of x. So cos ax plus b का derivative is minus sin of ax plus b into derivative of ax plus b, which is nothing but a. ठीक है, so we're done. This is our first step, and dy by dx. Now since the given function, अभी अब देखो given function जो है वो cos function है, तो जब हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, we will not find out the derivative of sin function. हमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर वी फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये जो साइन फंक्शन है ना, इसको हमें कॉस फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. द गिवन फंक्शन इज अ कॉस फंक्शन, तो किसका डेरिवेटिव लेना है हमें? कॉस फंक्शन का. 3 times we have to take the derivative of cos function and not the sin function right now. तो sin function को हम cos function में convert करेंगे, तो we all know. अच्छा, यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे ये माइनस साइन भी हम इंक्लूड कर लेंगे. We can include this minus sign also. अभी आप देखो, we know the formula that cos pi by 2 plus theta is minus sin theta होता है ना. अलाइड एंगल फॉर्मूलाज में हमने ये किया हुआ है, cos pi by 2 plus theta is minus sin theta. तो ये देखो माइनस sin theta, ये थीटा का काम कर रहा है. तो रिड ऑन. therefore नेक्स्ट स्टेप, therefore dy by dx is further equal to, a कांस्टेंट है उसको एज इट इज रखो. नाउ दिस टर्म माइनस साइन ऑफ ax plus b will be written as nothing but cos of pi by 2 plus theta, and theta is nothing but ax plus b. Close the bracket.
ठीक है ना। हाँ देखो, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज नेगेटिव साइन थीटा, तो ये थीटा का काम कर रही है। जो ax प्लस बी वाला एंगल है, दिस इज वर्किंग एज थीटा। तो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन यूज हो गया। हाँ? ये माइनस साइन यूज हो गया, तो वो वहां से गया। प्लीज अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन द रीजन फॉर योर रेफरेंस दैट cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज नेगेटिव साइन थीटा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। तो प्लीज रिमेंबर, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो राइट नाउ इट इज कॉस फंक्शन। तो बिफोर यू फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, साइन फंक्शन को कॉस में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, यू कैन डिफरेंशिएट डायरेक्टली। अभी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये कॉस फंक्शन है, वापस हमें कॉस फंक्शन मिल चुका है। नाउ विल फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन इसके बाद डिफरेंशिएटिंग आफ्टर दिस, differentiating with respect to x, so therefore इसका डेरिवेटिव, तो d by dx of dy by dx is equal to, a constant है, so it will remain same. We will be having d by dx of cos of pi by 2 plus ax plus b। ये ब्रैकेट ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज और ये क्लोज। ठीक है, चलो अभी हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हाँ, वापस ये रीजन रब कर देता हूँ, चाहिए तो बाद में लिख दूंगा वापस एक बार। तो व्हाट विल हैपन, देयरफॉर द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx2 is equal to a remaining same cos fx। ये पूरा fx है। हम देखो आपके रेफरेंस के लिए चाहिए तो मैं मार्क करता हूँ, दिस होल थिंग इज fx। अब रिकलेक्ट करो, cos fx का डेरिवेटिव क्या है, तो cos fx का डेरिवेटिव इज माइनस साइन fx इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। यहीं पे हमने अप्लाई किया, तो इसका डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। तो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0, b का डेरिवेटिव 0, ax का डेरिवेटिव इज नथिंग बट a एंड द ब्रैकेट क्लोजेस। तो अभी हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, दैट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx2 is nothing but equal to a into a। तो ये हो गया a स्क्वायर इंटू, अब आप देखो वापस वही फॉर्मूला, चलो मैं वापस लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। वी नो दैट cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। लेट्स ट्राई टू कट शॉर्ट द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये देखो a इंटू ए, तो ये तो मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर हो गया, तो दिस इज माइनस साइन थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है। दिस एंगल इज वर्किंग एज थीटा, तो माइनस साइन थीटा को कैसे लिखते हैं हम अलाइड एंगल में, तो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा। चलो तो राइट डाउन, व्हाट विल दिस बी रिटर्न एज, तो दिस विल बी रिटर्न एज cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, और ये पूरा एंगल थीटा है। ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पे आएगा। तो वंस अगेन आई पुट अप द ब्रैकेट, तो ये पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b आएगा ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज और ये ओपन है, तो ये भी क्लोज होगा। रूल है, जितने ब्रैकेट्स हम ओपन करते हैं उतने ब्रैकेट्स हमें क्लोज करने पड़ते हैं टू मेंटेन इक्वालिटी। चलो राइट डाउन, देखो आई रिपीट, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया। अंडरस्टैंडिंग के लिए रिपीट कर रहा हूँ, माइनस साइन थीटा, ये पूरा एंगल थीटा है, ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, ये पूरा एंगल थीटा है। तो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज नेगेटिव साइन थीटा, वो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। सिंपल है थोड़ा सा, इट इज इनिशियल स्टेज, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा मे बी, पर इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ओनली फॉर्मूले हमें अप्लाई करते हैं। cos पाई बाय 2 प्लस थीटा का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना, cos का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इट शुड बी ऑलवेज डेरिवेटिव ऑफ cos फंक्शन, रिमेंबर।
चलो अभी ये दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, π/2 प्लस π/2, ठीक है ना। तो चलो आई रब ऑफ दिस रीजन, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम। तो d2y/dx2 को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। लेट्स सिंप्लीफाई एंड राइट डाउन d2y/dx2 वंस अगेन। तो लिखो देयरफॉर d2y/dx2 is equal to a square into cos of π/2 plus π/2 is nothing but 2π/2 plus ax plus b will remain same, close the bracket, ठीक है। π/2 plus π/2 is 2π/2, no doubt, undoubtedly ये 2 कैंसिल होके वो पाई बचेगा, बट आप 2π/2 ही रखो उसको। I'll tell you why later on। चलो नोट डाउन टिल हियर। नाउ अभी इसका हम और एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर जनरलाइजेशन करेंगे। वैसे आप इससे भी एक बार आपको प्रैक्टिस हो गया कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके भी आप जनरलाइजेशन कर सकते हो, बट इट इज ऑलवेज बेटर फाइंड आउट द थर्ड ऑर्डर ऑल्सो। सो डिफरेंशिएटिंग, इसके बाद लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डिफरेंशिएटिंग का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देयरफॉर अभी हम डायरेक्टली लेते हैं इसका डेरिवेटिव। दो प्रॉब्लम्स हम पहले भी कर चुके हैं, तो थर्ड प्रॉब्लम में डायरेक्टली। तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज नथिंग बट d3y/dx3, d by dx of d2y/dx2 is d3y/dx3 इक्वल टू a स्क्वायर रिमेनिंग सेम। यहाँ पे वापस हमें वही cos fx का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो cos fx, ठीक है ना। तो cos fx का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट माइनस sin fx, ठीक है, माइनस sin fx इंटू f डैश ऑफ x, मतलब इसका डेरिवेटिव। तो 2π/2 का डेरिवेटिव 0, b का 0, ax का a एंड द ब्रैकेट क्लोजेस। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो देयरफॉर द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव with respect to x is nothing but a square into a is nothing but a cube, ठीक है। और वापस वही अपना अलाइड एंगल फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। कौन सा वाला, तो cos π/2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हर बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एवरी टाइम आई एम राइटिंग डाउन द फॉर्मूला फॉर योर रेफरेंस। तो अभी तक तो आपको मालूम पड़ चुका होगा कि इसको कैसे लिखना है। तो दिस विल बी रिटर्न एज cos ऑफ π/2 प्लस, ये देखो ये थीटा का काम कर रहा है, व्हाट इज वर्किंग एज थीटा, तो दिस इज वर्किंग एज थीटा। आप कंपेयर करके देख लो। तो cos π/2 प्लस थीटा इज नथिंग बट 2π/2 प्लस ax प्लस b, ब्रैकेट क्लोजेस, दिस ब्रैकेट क्लोजेस, दिस ब्रैकेट क्लोजेस एंड द स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजेस, ठीक है। ये स्टेप हमें मिल गया। तो ये रीजन है, पहले भी मैं लिख चुका हूँ। ऐसे बार बार आपको ये रीजन लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। इवन इफ यू राइट डाउन वंस द रीजन इट इज फाइन। तो मेरे को आपको समझाना है, इसलिए बार बार मैं लिख रहा हूँ। चलो नाउ ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो आई जस्ट रब दिस ऑफ, प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट ओवर, फिर हम जनरलाइजेशन करेंगे इसका। तो देयरफॉर द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट a क्यूब into cos of π/2 plus 2π/2 is nothing but 3π/2 plus ax plus b, close the bracket। हाँ, तो अभी आप ध्यान से देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो dy by dx a का पावर 1 है, इट इज cos π/2 plus ax plus b। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे a है, तो यहाँ पे a स्क्वायर हो गया। अब this is nothing but 1 times of π/2, now this has become twice of π/2, इधर 1 time of है, 1 into π/2 है, इधर 2 into π/2 ax plus b। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में a स्क्वायर का a क्यूब हो गया, और इधर 2π/2 का 3π/2 हो गया, तो इधर 1π/2, 2π/2, 3π/2। तो जनरलाइजेशन इज वेरी सिंपल। So therefore the nth order derivative
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो a का पावर हो जाएगा n, थर्ड ऑर्डर में a का पावर 3 है, सेकेंड ऑर्डर में a का पावर 2 है, फर्स्ट ऑर्डर में a का पावर 1 है, तो nth ऑर्डर में a का पावर n होगा, into cos of this will be written as n pi by 2 plus ax plus b. This is the final answer and the nth order derivative of this function. तो cos ax plus b का जो nth order derivative है वो ये है. Please make a note of this. Problem is over. ठीक है, तो जनरलाइजेशन में इसका प्रॉब्लम लिया है. अब जब एग्जांपल्स आएंगे तो वो व्हाट चेंजेस कैन बी मेड, आई विल गिव यू वन और टू एग्जांपल्स फॉर होमवर्क. अच्छा, वैसे ही सिमिलरली जैसे ये हमने कॉस फंक्शन का किया है, तो कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो साइन फंक्शन मिलता है, बट डिफरेंशिएट करने से पहले साइन फंक्शन को कॉस फंक्शन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो दैट वे इट इज टू बी डन. कॉस का डेरिवेटिव लेना है. तो जस्ट राइट डाउन एंड होमवर्क एग्जांपल डिपेंडेंट ऑन दिस. तो आपका होमवर्क रहेगा इसके ऊपर जो डिपेंडेंट है एग्जाम्पल, कुछ भी ले लो आप. y इज इक्वल टू कॉस 3x माइनस 4, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको. y इज इक्वल टू कॉस 3x माइनस 4 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव. कुछ भी दे सकते हैं, कॉस 2x प्लस 1, कॉस 2x माइनस 1, कॉस ऑफ 1 माइनस 2x, cos of 3 minus 4x, any cos function can be created. चलो, please make a note of this. अच्छा, सिमिलरली हम साइन फंक्शन का भी फाइंड कर सकते हैं. जैसे ये cos फंक्शन का फाइंड किया ना, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट साइन फंक्शन का भी. मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी हमें दिया है y इज इक्वल टू, इफ इट इज गिवन टू अस y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b, जनरलाइज फॉर्म में y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b. तो ये एग्जाम्पल 1 आपका होमवर्क का हो गया, ये एग्जाम्पल 2 आपका होमवर्क का. y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b, ये जनरलाइजेशन में दिया है मैंने आपको, जनरलाइज फॉर्म है. तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव, तो साइन ऑफ ax प्लस b का डेरिवेटिव विल बी कॉस ऑफ ax प्लस b इंटू a. फिर कॉस को आप साइन फंक्शन में कन्वर्ट करोगे. यहाँ पे विच इज द बेसिक फंक्शन, साइन फंक्शन इज टू बी डिफरेंशिएटेड n टाइम. तो साइन फंक्शन में जैसे यहाँ पे हमने कॉस फंक्शन था, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले जो साइन फंक्शन था उसको कॉस फंक्शन में कन्वर्ट किया. कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे बार बार लिया. तो यहाँ पे जब आप ये प्रॉब्लम करोगे सेकेंड वाला एग्जाम्पल, तो साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. वो जो कॉस फंक्शन मिलेगा उसको आप अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करके साइन फंक्शन में कन्वर्ट करोगे, एंड देन बार बार आप साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे. इसका डेरिवेटिव लेना है, 3 बार साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है. ठीक है, एंड देन यू फॉलो द सेम वे एंड फाइंड आउट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव. So these two are your homework examples. ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ योर होमवर्क एग्जाम्पल्स ऑल्सो. So please write down the next example, students. Log of ax plus b, अभी एक लॉगरिथमिक फंक्शन ले लेते हैं. ठीक है, solution we know how to start. Let y is equal to log ax plus b, differentiating with respect to x. So therefore dy by dx is further equal to. ठीक है, तो log of ax plus b का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इट विल बी 1 upon ax plus b into derivative of ax plus b which is nothing but a. अभी ये dy by dx हो गया, that's it. Now again differentiating with respect to x, so therefore d by dx, चलो आपके लिए लिख देता हूँ, d by dx of dy by dx is equal to, a कांस्टेंट है, d by dx of, हाँ चलो इसका भी हम डेरिवेटिव वैसे तो डायरेक्टली ले सकते हैं. इट इज 1 upon ax plus b, 1 by fx है ये. So therefore this is going to become d2y by dx2 equal to a remaining same 1 by fx का डेरिवेटिव. So 1 by fx का डेरिवेटिव is nothing but minus 1 by
fx the whole square into derivative of ax plus b which is nothing but a. ठीक है, तो d2y by dx2 d2y by dx2 is equal to a into a square हो गया into -1 whole upon this is ax plus b the whole square. और थोड़ा जगह यहाँ पे छोड़ दो, if any adjustment required we'll do it later on. कुछ थोड़ा हमें हो सकता है कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके लिखना पड़े इसको, थोड़ा जगह छोड़ दो आप, that will write down later on. यहाँ पे भी इक्वल टू पे थोड़ा जगह छोड़ दो आप, है ना. तो write down. Now we will find out the third order derivative. ठीक है, अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे. We can write down after this differentiating with respect to x. So therefore d by dx of d2y by dx2 is equal to a square constant है, -1 भी बाहर आ गया, into d by dx of this will be written as ax plus b to the power -2. So therefore the third order derivative d3y by dx3 is equal to a square into -1. कभी भी किसी वेरिएबल्स को और नंबर्स को मल्टीप्लाई मत करना जनरली, डोंट मल्टीप्लाई देम, कीप देम. अभी इसका डेरिवेटिव आप फाइंड करो, चलो क्विकली राइट डाउन. तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, इट विल बी -2 इंटू ax प्लस b टू द पावर -3 इंटू ax प्लस b का डेरिवेटिव इज a. So therefore write down d3y by dx3 is further equal to a square into a, तो ये हो जाएगा a क्यूब. ठीक है, -1 into -2 upon this is going to become ax plus b the whole cube. ऐसा हो जाएगा. ठीक है, नाउ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ओवर. अभी हम थोड़ा जनरलाइजेशन कर लेते हैं. चलो राइट डाउन टिल हियर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जनरलाइजेशन करते वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. तो चलो दिस इज dy by dx रिमेनिंग सेम, यहाँ पे d2y by dx2 इज ऑल्सो सेम चाहिए, तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं. दिस इज -1 multiplied by 1 into a square upon this will be written as ax plus b the whole square. ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको भी थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं. तो पहले क्या लिखा हमने, माइनस. ओके चलो, अभी -1 इंटू -1, दो बार माइनस साइन है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा. माइनस माइनस दो बार है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा. द नंबर्स आर 1 इंटू 2, डॉट डाल देता हूँ यहाँ पे, 1 इंटू 2, दिस इज 1 इंटू 2, a का पावर 3 है और डिनोमिनेटर में ax प्लस b का पावर 3 है. तो थोड़ा हमने इसको ऐसा रीअरेंज कर लिया. चाहिए तो इसको भी आप 1 इंटू 1 भी लिख सकते हो. दिस कैन बी रिटर्न एज 1 इंटू 1 इंटू a अपॉन ax प्लस b और कीप इट एज इट इज. अभी आप देखो, जो जनरलाइजेशन करना है हमें, तो द nth ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू व्हाट. तो पहले तो हम जो इजीली ऑब्जर्वेबल है वो देख लेते हैं. ax प्लस b का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ax प्लस b का पावर 1 है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ax प्लस b का पावर 2 है, थर्ड ऑर्डर में 3 है. तो nth ऑर्डर में
ax प्लस बी का पावर n हो जाएगा। अभी a पे आते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे a का पावर 1 है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में a का पावर 2 है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में a का पावर 3 है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में a का पावर n हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी कम ऑन टू द नेगेटिव टर्म -1 -2 पे आते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे जो -1 का पावर है, हाँ अभी उल्टा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 का पावर 2 है, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 का पावर 2 है, तो एक कम है ना, 3 में 2 है। देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 का पावर 1 है, तो इफ यू ऑब्जर्व -1 का पावर इज n-1। ध्यान से देखो आप, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में पावर 2 है। अगर सपोज हम फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 का पावर 3 होता, एक कम है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में एक कम पावर चाहिए, तो n-1 आएगा, बट ऑब्वियस। ठीक है ना। नाउ अभी हम बात करते हैं ये नंबर्स की, 1 into 2। नाउ इफ यू ऑब्जर्व 1 into 2, नाउ 1 into 2 इज नथिंग बट, ये जो 1 into 2 है, दिस इज नथिंग बट 2 फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग बट 2 फैक्टोरियल। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 फैक्टोरियल है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 फैक्टोरियल मिलेगा। अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते तो हमें 1 into 2 into 3 मिलता, तो 3 फैक्टोरियल मिलता। तो इसमें भी एक कम हो रहा है ना, तो हियर ऑल्सो 1 into 2 इज नथिंग बट, यहाँ पे जो nth ऑर्डर हम लिखेंगे, दिस विल बी नथिंग बट n-1 फैक्टोरियल, एक कम हो रहा है, n-1 फैक्टोरियल। अगर सपोज यहाँ पे 3 है, ये n, इफ यू सी द प्रीवियस एग्जांपल में हमने n फैक्टोरियल लिखा था। क्यों? क्योंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में इट वाज 1 into 2 into 3, तो 1 into 2 into 3 is 3 factorial, 1 into 2 into 3 into 4 is 4 factorial। we have done it in 11th standard, फैक्टोरियल के बारे में हमें मालूम है। तो यहाँ पे 1 into 2 है, बट थर्ड ऑर्डर में 1 into 2 है, तो nth ऑर्डर में एक कम आएगा ना, तो इट विल बी n-1 द होल फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू, ये तो हम पहले लिख चुके हैं। चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम क्या करते हैं, हम जनरलाइज करते हैं डेरिवेटिव को, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी सपोज आपने डाला n का वैल्यू 1, क्रॉस चेक कर लेते हैं, n का वैल्यू 1 डाला तो -1 raised to 0, एनीथिंग raised to 0 is 1, and 1 minus 1, 0 factorial is again 1, a raised to 1, ax plus b raised to 1। देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, ऐसा क्रॉस चेक कर सकते हो आप। देन लेट अस चेक आउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, -1 का पावर 2 minus 1, n का वैल्यू 2 डालना है, तो -1 का पावर 2 minus 1 is 1, तो -1 का पावर 1 है। देखो n का वैल्यू 2 डाला तो 2 minus 1, तो इट इज 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज 1 itself, a का पावर 2, ax प्लस b का पावर 2। वैसे n का वैल्यू 3 डालोगे तो -1 raised to 2, यहाँ पे 3 minus 1, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 into 1, ये 2 फैक्टोरियल होता है। फिर a raised to 3 और इसका पावर 3, तो इसका जनरलाइजेशन हो गया। तो प्लीज सी टू इट दैट चेंजेस नहीं करने हैं हमें, जैसा फॉर्मेट चला आ रहा है उसको ही हमें जनरलाइज करना है। डू नॉट मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, लाइक यू नो माइनस ए, इसको -a² नहीं लिखने का, इसको 2a³ नहीं लिखने का, यू डोंट राइट डाउन दैट वे, तो फिर जनरलाइजेशन रॉन्ग हो जाएगा। जनरलाइजेशन नहीं, जो जैसे नंबर्स है, नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स है, as it is रखने का। You do not multiply and write down 1 into 2 as 2. No, you keep it as it is the format and then you do the generalization. Please make a note. 3 marks. This can be asked for 3 marks. अब ये मैंने जनरल फॉर्म में किया। अब ऑब्वियसली पता है आपको, मैं इसके ऊपर आपको एक होमवर्क एग्जांपल दूंगा। तो होमवर्क एग्जांपल विल बी, यू हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ log 3x plus 5। log 3x plus 5 का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो ax plus b का तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो log 3x plus 5 का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। इट्स वेरी सिंपल,
क्या चेंज होगा? ये सब तो सेम रहेगा, दिस ऑल थिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम, सिर्फ ये ए वाला पार्ट चेंज हो जाएगा और ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा. ओके, so same procedure is to be followed when you will find out derivative of this. Please make a note. तो जनरलाइजेशन में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये एग्जांपल्स आपको आराम से, अगर जनरलाइजेशन वाला आ गया तो ये आपको आराम से आ जाएगा. नाउ यू कैन से लाइक फॉर एग्जांपल, अगर सपोज एग्जाम में दिया कि log 2x minus 1 का डेरिवेटिव दिया, सपोज इफ दे आस्क यू डेरिवेटिव ऑफ, एग्जाम में log ऑफ 2x minus 1 का डेरिवेटिव पूछ लिया, तो आप बोल नहीं सकते आशीष सर ने हमको ये log ऑफ 2x minus 1 का नहीं करवाया, प्लस वाला तो करवाया. अब जो प्रोसीजर इसका है वही सेम प्रोसीजर इसका है, इसलिए मैंने जनरल फॉर्म के लिए लिया. प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स द सेम प्रोसीजर इन्वॉल्व इन दिस. ठीक है, चलो, so let's continue ahead after this. Please note down this first of all. चलो, write down the next, and this will be the last example for nth order derivative. और ये प्रॉब्लम completely अलग है previous example से. How? So that we'll see by solving it. देखो fifth one, e raised to 8x into cos 6x plus 7. इसका हमें nth order derivative find करना है. Weightage 3 marks. Solution. हाँ, थोड़ा सा जरा प्रोसीजर इसमें डिफरेंट भी है और थोड़ा सा लेंथियर है, बट डजंट मैटर. देखो, लेट दिस बी इक्वल टू y. फर्स्ट है, तो ऑब्वियसली अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट स्टेप, so therefore dy by dx is equal to d by dx of e raised to 8x into cos of 6x plus 7. Close the brackets. Now, as we all know that we are going to apply u into v rule. Product rule of derivative apply करना है, तो ये हमारा u बोलो या फर्स्ट फंक्शन बोलो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ऐसा लिखते हैं हम जनरली. यू कैन रिमेम्बर u into v rule, प्रोडक्ट रूल कैसे भी याद रखो. So therefore लिखो नेक्स्ट स्टेप, dy by dx. What will happen? First function as it is. Now we'll skip this step. ठीक है, first function as it is, so e raised to 8x remaining same. ठीक है, derivative of second function, so d by dx of the second function, so cos 6x plus 7 का डेरिवेटिव क्या होगा? तो it will be minus sin of 6x plus 7 into derivative of 6x plus 7, which will be 6. Close the bracket. First function as it is, derivative of the second function. ठीक है, plus now second function as it is, so cos 6x plus 7 remaining same, derivative of first function, so d by dx of e raised to 8x is nothing but 8 into e raised to 8x. Close the bracket. Yeah, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. तो प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया डेरिवेटिव का, वी हैव गॉट अवर dy by dx. अब थोड़ा इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं. नाउ e raised to 8x कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम देम, तो लिखो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू e raised to 8x कॉमन ले लिया. अभी एक ब्रैकेट आप ओपन करो और इसको थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं. पॉजिटिव टर्म फर्स्ट एंड देन द नेगेटिव टर्म. Freedom, this will be written as 8 into cos 6x plus 7. ये टर्म मैंने पहले लिखा, माइनस 6 into sin 6x plus 7, उसको मैंने बाद में लिखा. रीअरेंज कर लिया so that we save the steps also at the same time. ठीक है, e raised to 8x कॉमन ले लिया मैंने. अच्छा, अभी जो स्टेप है वो आपको याद रखना है प्रोसीजर आफ्टर दिस. ठीक है, अभी यहाँ पे जो हम करने वाले हैं उसका मैं जनरलाइज फॉर्म आपको दे देता हूँ. राइट डाउन एट द टॉप ऑफ द पेज, राइट डाउन, मेक अ नोट. इफ वी हैव, ऐसा लिखो नोट. एक मिनट मैं लिख के देता हूँ. लिखो एट द टॉप ऑफ द पेज यू राइट डाउन नोट.
y इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी रहेगा, बी एक्स प्लस सी रहेगा, or else if you have y is equal to e raised to ax into sin bx plus c रहेगा, either of them present, कोई भी present हो, you will always do one adjustment, that is multiply and divide by under root of a square plus b square. ये प्रोसीजर है, ये जो जनरलाइज्ड फॉर्म है ना, ये दोनों इसका प्रोसीजर है कि डेरिवेटिव लेने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना पड़ता है। तो एट द टॉप ऑफ द पेज, ये तो हम लिखेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे, बट एट द टॉप ऑफ द पेज यू नोट डाउन दिस, एकदम हेडिंग पे आप लिख लो ये, वेयर ए इज जो ई के पावर में है वो ए आपको दिखेगा, यहाँ पे ए है and b will be present over here, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। नोट डाउन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलो अभी उसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। नाउ यू ऑब्जर्व, इसको आप उसके साथ कंपेयर करो, तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस आप देख लो इस प्रॉब्लम में, हियर इन दिस प्रॉब्लम हियर the value of E is 8 and B is 6, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, अच्छा चलो वो तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, हमें क्या फाइंड करना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट 64 प्लस 36 बी का स्क्वायर, तो टोटल इज 100 एंड रूट 100 इज नथिंग बट 10, तो ये 10 हो गया। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 10 है। अच्छा अभी इसको मैंने जनरलाइज्ड वे में, आप बोलोगे कि सर आपने प्रीवियस सारे एग्जांपल जनरलाइज्ड वे में लिए और इसको आप नंबर में ले रहे हो, बिकॉज नंबर में अंडरस्टैंडिंग और स्टेप्स थोड़े सिंपल है। अगर ये मैं जनरलाइजेशन में प्रॉब्लम ले लूँ तो आई विल हैव टू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर वो आपको समझाने के लिए और एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्टली इसको मैंने जनरलाइज फॉर्म में नहीं लिया है, आई हैव टेकन इनटू द नंबर फॉर्म, क्योंकि नंबर फॉर्म में थोड़ा जरा इजी होता है अंडरस्टैंडिंग, तो आई हैव टेकन दिस इन द नंबर फॉर्म, दिस एग्जांपल। तो अभी ये स्टेप के बाद ये आपके रेफरेंस के लिए है, दिस आई हैव रिटर्न फॉर योर रेफरेंस, जैसे एग्जाम में आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, दिस इज नॉट टू बी रिटर्न। तो फिर इसके बाद क्या लिखना है, तो राइट डाउन आफ्टर दिस स्टेप, लिखो इसके बाद मल्टीप्लाई and divide by 10. Why? So I've given the explanation. ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद यू हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका वर्किंग रूल है, दिस इज कंपलसरी है, ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। चलो राइट डाउन, so after this step we multiply divide by 10. Why 10? So I've shown you the procedure बॉक्स में। तो चलो अभी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आप लिखो, देयरफॉर dy by dx is further equal to e raised to 8x remaining same, मल्टीप्लाइड वाला 10 बाहर, मल्टीप्लाइड वाला 10 बाहर, दिस इज गोइंग टू बिकम 8 by 10 into cos 6x plus 7 minus 6 by 10 into sin 6x plus 7, ठीक है। मल्टीप्लाइड वाला 10 बाहर है, डिवाइडेड वाला 10, तो दोनों को 10 से डिवाइड करना है, तो विल गेट दिस स्टेप, तो प्लीज नोट दिस। यहाँ तक आप लिख लो, फिर हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू, अभी जो हम करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस होल ब्रैकेट, ठीक है। देखो ये बेसिकली व्हाट वाज प्रेजेंट, बेसिकली कॉस्ट फंक्शन था, है ना, तो कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लिया, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस होल ब्रैकेट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि उसने कॉस्ट फंक्शन दिया है स्टार्टिंग में, तो ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है इसको भी हमें कॉस्ट फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं. नाउ राइट डाउन आफ्टर दिस लिखो, डू इट अलोंग विथ मी. राइट डाउन लेट, इसके बाद लिखो लेट 8/10 इज इक्वल टू, आप लिखो cos अल्फा. लेट 8/10 बी इक्वल टू cos अल्फा एंड लेट 6/10 बी इक्वल टू sin अल्फा. वी हैव डन दिस काइंड. जब हमने टाइप 3 किया था ना, तो ब्रैकेट को कन्वर्ट करते थे हम एक फॉर्मूला में. तो इसको मैंने cos अल्फा लिया और 6/10 को sin अल्फा लिया. ठीक है, राइट डाउन. देयरफॉर how much will be tan alpha? So therefore tan alpha will be sin alpha upon cos alpha. So 6/8. 6/8 means it is nothing but 3/4. So tan alpha is 3/4. So alpha will be tan inverse 3/4. हाँ, ये अल्फा आप मार्क कर लो. ये अल्फा हमें लास्ट में जाके लगेगा रिप्लेस करने के लिए. इसको cos अल्फा लिया, इसको sin अल्फा लिया, tan अल्फा और अल्फा हमने फाइंड कर लिया. Now we'll replace. चलो यहाँ तक लिख लो. Then I'll rub this off. I hope everyone has written this as well as this. ये example का working rule है, तो ये लिखना compulsory है. चलो write down this, then we'll move ahead. ठीक है, चलो अभी ये मैं रब कर देता हूँ. ये स्टार्टिंग वाला, बिकॉज आई नीड स्पेस टू राइट डाउन. और ये यूनिट भी रब कर देता हूँ. दिस इज ऑलरेडी ओवर. ठीक है, दिस ऑल्सो है रब ऑफ. ये चीज भी रब कर देता हूँ और इसको भी रब कर. गिव मी मिनट. So let's continue after this step now. तो इसके बाद क्या मिलेगा, लिखो therefore, I just continue from the top. Therefore dy by dx is equal to, ठीक है, e raised to 8x into 10 remaining same. तो 8/10 will be replaced by cos alpha. चलो ठीक है, rearrange बाद में कर लेंगे हम. This will be written as cos alpha into cos 6x plus 7 minus this is sin alpha into sin 6x plus 7 and close the square bracket. तो 8/10 को cos अल्फा से रिप्लेस किया और 6/10 को हमने sin अल्फा से रिप्लेस किया. Now see this very carefully. ये स्टेप मैंने फिलहाल आपके सामने रखा, बाद में रख कर लूंगा. Now this is of the form cos A cos B minus sin A sin B. So we all know formula cos A cos B minus sin A sin B is nothing but cos of A plus B. So लिखो, what will this become? Therefore dy by dx is equal to 10 constant है, 10 को पहले लिख देते हैं, फिर e raised to 8x and this will be written as cos of A plus B. So it is 6x plus 7, ठीक है, प्लस अल्फा. ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो dy by dx फाइंड करने के बाद एंड आफ्टर डूइंग दिस एडजस्टमेंट वी हैव रीच्ड आवर सिंप्लीफाइड dy by dx. देखो हमको स्टार्टिंग में cos फंक्शन दिया था, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले हमारे पास cos फंक्शन ही होना चाहिए. अभी तो हमने किया ना एक एग्जांपल, वी हैव डन दैट वे. तो cos फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है. नाउ वी विल फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसमें हम 2 ही बार डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम एंड टाइम विल डू इट डायरेक्टली. चलो, तो लेट्स कंटिन्यू अहेड. So now write down differentiating with respect to x. उसके बाद लिखो आप differentiating with respect to x. चलो again apply u into v rule and find out the derivative. Proceed ahead. Waiting for you to do it.
अभी डायरेक्टली करेंगे हम यहाँ पे, तो देयर फॉर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट डी टू वाई बाई डी एक्स टू. लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम डी टू वाई बाई डी एक्स टू. इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है. अब पहले ऑलरेडी मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, तो डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे. 10 कांस्टेंट है, बाहर रखो आप इसको, और इसको आप लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट मीन्स यू इंटू वी रूल अप्लाई करना है हमें यहाँ. तो इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 8x इंटू कॉस 6x प्लस 7 प्लस अल्फा. ये ब्रैकेट इधर और ये ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट इधर क्लोज चाहिए. तो एनीवेज यू इंटू वी रूल तो अप्लाई करेंगे ना. तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको चाहिए तो ऐसा लिख देता हूँ, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. ऐसा है. वी हैव टेकन डी बाई डी एक्स ऑन बोथ द साइड. अभी क्या होगा, तो वी नो दैट. चलो अभी ये स्टेप मैं रब कर देता हूँ. दिस स्टेप आई विल रब ऑफ बिकॉज मैं तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दे. चलो यू इंटू वी रूल अप्लाई करो तब तक आप. दिस आई कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ ऑल्सो. ये पहले के स्टेप्स हैं, ये पहले के स्टेप्स हैं. अभी देयर फॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन स्टूडेंट्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 10 रिमेनिंग 10 कर्ली ब्रैकेट यू इंटू वी रूल. ठीक है. तो ई रेज टू 8x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस cos 6x प्लस 7 है ना, ब्रैकेट यहाँ पे है 6x प्लस 7. नाउ e रेज टू 8x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन ऑफ 6x प्लस 7 प्लस अल्फा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 6x प्लस 7 प्लस अल्फा. तो इसका डेरिवेटिव होगा 6. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन. ठीक है. नाउ प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, cos ऑफ 6x प्लस 7 एक ब्रैकेट में प्लस अल्फा क्लोज द ब्रैकेट इनटू, नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. तो e रेज टू 8x का डेरिवेटिव है e रेज टू 8x इंटू 8 एंड दिस कर्ली ब्रैकेट क्लोजेस. अब हम वापस इसमें से e रेज टू 8x कॉमन निकालेंगे. दोनों टर्म्स में से we will take e raised to 8x कॉमन एंड रीअरेंज. तो देखो क्या मिलेगा, देयरफॉर d2y by dx2 इज इक्वल टू, है ना, 10 पहले से ही है. हम यहाँ से e raised to 8x कॉमन निकालेंगे एंड लेट अस रीअरेंज. इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं हम. तो हाउ डू वी रीअरेंज, तो पॉजिटिव टर्म फर्स्ट, तो 8 इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 प्लस अल्फा. ये पहले लिखा हमने और ये बाद में आएगा, माइनस 6 इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 7 प्लस अल्फा एंड देन क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट. तो रीअरेंज करके लिख दिया. अभी हम वापस क्या करेंगे, वी अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 आफ्टर दिस. लिखो अगेन मल्टीप्लाई, इसके बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10. व्हाई, तो प्रोसीजर मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. ये पहले के स्टेप्स हैं, ये इसके पहले के स्टेप्स हैं, वो आपके लिए मैंने रेफरेंस के लिए रखा हुआ है. So now when we multiply divide by 10, let's see what do we get. इसको मैं रब कर दूंगा, डोंट वरी. देखो आप d2y by dx2 is equal to multiply by 10. अब देखो 10 पहले से है, तो 10 into 10, तो ये हो जाएगा 10 square into e raised to 8x remains same. अब divide by 10, so this is going to become 8 by 10 into cos of 6x प्लस 7 प्लस अल्फा माइनस ये हो जाएगा 6 बाई 10. दिस इज गोइंग टू बिकम 6 बाई 10 इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 7 प्लस
अल्फा, क्लोज द ब्रैकेट एंड क्लोज द मेन वाला ब्रैकेट। आफ्टर दिस स्टेप आई हैव डन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10। तो जो 10 मल्टीप्लाई किया था तो 10 इंटू 10 हो गया 10 स्क्वायर, और जो डिवाइडेड वाला 10 है वो 8/10 हो जाएगा, और इधर ये 6/10 हो जाएगा। ठीक है, चलो राइट डाउन टिल हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी आप देखो हमने पहले क्या किया था, 8/10 को हमने कॉस अल्फा लिया था और 6/10 को हमने साइन अल्फा लिया था, तो सेम कंटिन्यूस यहाँ पे भी वही करेंगे हम, है ना। तो दिस 8/10 will be written as cos alpha and this 6/10 will be written as sin alpha। तो ये जो पहले का स्टेप था ना वो यही है, दिस इज सेम थिंग विच आई हैव केप्ट ऑन द बोर्ड। ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट टू रिपीट दिस, वी हैव ऑलरेडी रिटर्न। अभी हम सिर्फ इतना करेंगे, 8/10 को cos अल्फा से रिप्लेस करेंगे और 6/10 को sin अल्फा से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो आई रब दिस ऑफ। आपके रेफरेंस के लिए मैंने बोर्ड पे रखा था, नाउ इसको मैं रब कर देता हूँ पहले तो, और फिर तब तक आप चाहिए तो रिप्लेस करो, replace it out over here। Therefore the second order derivative d2y by dx2 is equal to 10 square into e raised to 8x into, इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, तो दिस विल बी रिटर्न एज cos alpha into cos of 6x plus 7 plus alpha, 8/10 replaced by cos alpha and 6/10 replaced by sin alpha into sin of 6x plus 7 plus alpha, ये ब्रैकेट क्लोज और ये मेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इन मल्टीप्लिकेशन। लिखो आप ये स्टेप। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू दिस क्वेश्चन इज लेंथियर, 3 to 4 मार्क्स के लिए आ सकता है ये। You will have to keep patience when you are solving this problem। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा प्रॉब्लम जब आप सॉल्विंग करते हो तब। ठीक है, ऑल दी स्टेप्स आर क्लियर। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 भी कर दिया हमने, ये सब ओवर हो गया। वी हैव गॉट दिस। ठीक है, चलो अभी इसके बाद, चलो ये भी चाहिए तो मैं रब कर देता हूँ स्टेप। ठीक है, चलो लेट मी कीप दिस इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ ऑब्जर्व cos A, this is A, cos A cos B minus sin A sin B, cos of A plus B हो जाएगा। तो इसके बाद मैं ऊपर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो therefore down d2y by dx2 is further equal to 10 square into e raised to 8x into bracket we will be having cos of A plus B, so means it will be 6x plus 7, A plus B, तो 6x plus 7 पहले से है प्लस अल्फा, A प्लस B, ये ब्रैकेट यहीं पे प्लस B, what is B, तो B is alpha again and the bracket closes over here। ठीक है, चलो देखो cos A cos B minus sin A sin B is cos of A plus B, A plus B angle add होगा, so therefore d2y by dx2 is further equal to 10 square into e raised to 8x into, ये ब्रैकेट नहीं डालता हूँ अभी मैं, cos of this is nothing but 6x plus 7 plus 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा ये ऐड हो गया, ये 2 अल्फा हो गया। अभी आप देखो जनरलाइजेशन करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, वी हैव टू जनरलाइज एन n। तो आप देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑब्वियसली मेरे पास बोर्ड पे है नहीं वो पार्ट, तो अभी आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑब्जर्व करोगे। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। नाउ इफ यू ऑब्जर्व योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वहां पे देखो 10 का पावर 1 है,
10 का पावर 1 है, e रेज टू 8x है, और ये सब सेम है, खाली यहाँ पे अल्फा है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो अब देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है, तो 10 का पावर 2 है, ये सेम है, और यहाँ पे 2 अल्फा है, बाकी सब सेम है। तो सिमिलरली बिफोर वी राइट डाउन nth ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिख लेते हैं। तो सिमिलरली d3y/dx3 फाइंड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू फाइंड आउट, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा फिर वो प्रॉब्लम। तो व्हाट विल हैपन, d3y/dx3 में 10 का पावर 3 हो जाएगा, e रेज टू 8x इंटू कॉस ऑफ क्या मिलेगा हमें, 6x प्लस 7 प्लस 2 अल्फा का 3 अल्फा हो जाएगा, ये थर्ड ऑर्डर में होगा। तो कंटिन्यूइंग इन सच अ वे, व्हाट डू वी ऑब्जर्व दैट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 10 का पावर n, ठीक है, e रेज टू 8x रिमेनिंग सेम इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पे हमें मिलेगा 6x प्लस 7 प्लस 3 अल्फा के जगह पे आ जाएगा n अल्फा, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 1 अल्फा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 अल्फा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 अल्फा है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में n अल्फा होगा। अब एक लास्ट स्टेप है, हम अल्फा रिप्लेस करेंगे, चेकआउट अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 3/4 था, देखो आप नोटबुक में, एंड रिप्लेस। तो जो फाइनल आंसर है हमारा, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज 10 raised to n into e raised to 8x into cos of, this is 6x plus 7 plus n into alpha will be replaced by tan inverse of 3/4, the bracket closes, and this is the final answer of the problem. Finally we have finished, at least, but at last we have finished with the example, और important problem है, 3 to 4 marks के लिए आ सकता है। So with this example we have finished off with the nth order derivative. तो बाकी के जो examples है, even in textbook also textual examples भी है, that you can do it very easily by doing these examples or by seeing these examples. Okay, please make a note of this. Okay, so with this we stop for today. Next time we meet, we continue ahead. Please make a note of it.